Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know that we are reading Unit 10, that is SL on Sports Day, and yesterday we read the first two paragraphs of this unit. So kindly take out your books. It's on page 42, Unit 10, and the unit name is SL on Sports Day. Okay, I'll repeat. It's page 44, Unit 10, and it's SL on Sports Day. We have read the first two paragraphs. Before moving to paragraph number 3, first we will revise what we have read yesterday. The story is about a donkey, and the donkey name is Asel. That donkey is going to perform in a race, is going to run in a race. That race is specially designed for, especially planned for ponies, the small horses. Okay, but Maria and Shay, they decide for that donkey Asel to take part in this race also, and their teacher also agrees to this. But Maria is a little bit worried. Why she is worried? She is worried because Asel is a donkey, and everybody knows the fact that ponies, they are much faster, and they are much bigger. So Maria is actually worried that Asel will eventually lose the race, okay, because he is a donkey. So the Asel cannot run as much fast as a pony can. So in order to make that donkey run fast, what Maria is doing, each day after school, Maria is bringing Asel to the beach to practice, and Asel is working hard. Okay, and Asel is good, but the fact remains the fact, okay, that ponies are all bigger and they are all faster. Now come to paragraph number 3, and it starts as Granddad Leo heard about the problem. Who heard about the problem? Granddad Leo heard about the problem. He knew Asel loved carrots. He thought of a plan. On sports day, all the big ponies were in a line ready to run. Little Asel was there too, but Shay and Maria could not believe their eyes. There was a carrot tied to a stick in front of Asel's nose. Granddad knew that Asel would run fast to try to catch the carrot. Okay, this is our third paragraph. Granddad Leo heard about the problem. Granddad Leo ने इस मसले के बारे में सुना. Who heard about the problem? Granddad Leo. He knew, वो जानते थे, Asel loved carrots. Asel को क्या पसंद है? Carrots, यानी कि गाजर. ओके, वो जानते थे कि Asel को गाजर बहुत पसंद है. वो गाजरों से बहुत मोहब्बत करता है. उसे गाजर खाना बहुत पसंद है. सो इससे हमें एक और बात पता चली कि Asel को क्या चीज़ पसंद है? कैरेट्स पसंद है. ओके, He thought of a plan. Who thought of a plan? Granddad Leo thought of a plan. उन्होंने एक मंसूबे के बारे में सोचा. Thought सोचा, plan मंसूबा. ओके, He thought of a plan. उन्होंने एक मंसूबे के बारे में सोचा, एक प्लान बनाया उन्होंने. What is the plan? We will learn about it later. On sports day, खेलों वाले दिन, all the big ponies were in a line ready to run. सारे बड़े पोनीज, बिग पोनीज, वो एक लाइन में खड़े थे, तैयार खड़े थे दौड़ने के लिए, रेस लगाने के लिए. ओके, ऑन स्पोर्ट्स डे, खेलों वाले दिन, ऑल द बिग पोनीज, तमाम बड़े पोनीज, वर इन अ लाइन, वो कतार में थे, रेडी टू रन, दौड़ने को तैयार खड़े थे. ओके, लिटिल एसल वॉज देयर टू. छोटा एसल भी वहाँ था. बट शे एंड मारिया कुड नॉट बिलीव देयर आइज़. लेकिन शे एंड मारिया को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था. कुड नॉट बिलीव, यकीन नहीं आ रहा था, देयर आइज़, अपनी आंखों पे. वो अपनी आंखों, वो जो देख रही थी उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी. और वो क्या देख रही थी? येस, देयर वॉज अ कैरेट tied to a stick in front of Asel's nose. Okay,
एसल की नाक के सामने क्या था? एक गाजर बंधा हुआ था एक स्टिक से, चड़ी से या डंडे से। ओके, सो यू नो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द प्लान ऑफ ग्रैंडडैड लियो। ओके, एज यू ऑल नो कि एसल को क्या चीज़ पसंद है? कैरेट्स। सो ग्रैंडडैड ने क्या सोचा कि उसकी नाक के सामने कैरेट को बांध दिया जाए, टाई किया जाए किसी स्टिक से। सो एसल को क्या चीज़ नज़र आएगी जब वो दौड़ेगा? उसको वो कैरेट नज़र आएगा, और उस कैरेट को पकड़ने के लिए वो क्या करेगा? वो तेज़ दौड़ेगा। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ ग्रैंडडैड लियो। Granddad knew that Hassel would run fast to try to catch the carrot. Granddad जानते थे कि Hassel इस कैरेट को, इस गाजर को पकड़ने के लिए ज़्यादा तेज़ दौड़ने की कोशिश करेगा। ओके, कैच पकड़ना, ट्राई कोशिश करना, रन फास्ट तेज़ दौड़ना। ग्रैंडडैड न्यू वो जानते थे, ग्रैंडडैड क्या जानते थे कि एसल तेज़ दौड़ेगा। क्यों तेज़ दौड़ेगा? गाजर को पकड़ने के लिए। ओके, वो उसकी नोज़ के सामने होगा ना, तो एसल को और कुछ नज़र नहीं आएगा, सिर्फ वो कैरेट नज़र आएगा, और उस कैरेट को हासिल करने के लिए वो ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा। ओके, सो दिस वाज द थर्ड पैराग्राफ, इट वाज अबाउट ग्रैंडडैड लियो। अब ग्रैंडडैड लियो ने इस प्रॉब्लम के बारे में सुना तो उन्हें एक बात याद आई, और वो क्या थी? वो ये थी कि एसल को क्या चीज़ पसंद है? कैरेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अब प्रॉब्लम ये थी दैट एसल वॉज अ डंकी, वो तेज़ नहीं दौड़ सकता था। सो ग्रैंडडैड ने एक प्लान के बारे में सोचा। सो जब स्पोर्ट्स डे वाले दिन सब लाइन में खड़े थे तैयार, सो मारिया एंड शे दे गॉट सरप्राइज्ड। वो सरप्राइज क्यों हुई वो दोनों? क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि एसल की नोज़ के सामने एक कैरेट बंधा हुआ था। ओके, दिस वॉज अ प्लान ऑफ ग्रैंडडैड, एंड ग्रैंडडैड जानते थे कि एसल इस कैरेट को पकड़ने की कोशिश में ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा। ओके, सो लेट्स कम, और ये हम ये जानने की कोशिश करते हैं लास्ट पैराग्राफ में कि ग्रैंडडैड का ये प्लान जो है ये कामयाब हुआ या नहीं। ओके, सो द लास्ट पैराग्राफ स्टार्ट्स एज द टीचर ब्लू द विसल। द टीचर ब्लू द विसल, ब्लू मीन बजाना या पूंख मारना, एंड विसल मीन सीटी। द बिग पोनीज वर ऑल वेरी क्विक, but Hassel was much quicker. Okay. Alright, dear students, the big ponies were all very quick, but Hassel was much quicker. Hassel kept running to try to catch the carrot. Hassel kept running to try to catch the carrot, and Hassel won the race. Okay. Hassel won the race. Everybody cheered. Everybody cheered. The teacher gave Hassel a medal. The teacher gave Hassel a medal. She took the carrot off the stick and gave it to Hassel. Maria ran to Granddad Liu and gave him a big hug. Granddad Liu winked and smiled. Okay, the teacher blew the whistle. टीचर ने क्या किया? उन्होंने सीटी बजाई रेस को स्टार्ट करने के लिए। द बिग पोनीज वर ऑल वेरी क्विक, जो बड़े पोनीज थे वो सारे क्या थे? वो बहुत तेज़ थे। वर ऑल वेरी क्विक, वो बहुत तेज़ थे। बट एसल वॉज मच क्विकर, लेकिन एसल क्या था? वो इन सब से तेज़ था। वॉज मच क्विकर, इन सब से तेज़। क्विक तेज़, क्विकर सबसे तेज़। ओके, एसल केप्ट रनिंग to try to catch the carrot, and why Hassel was much quicker? Because he kept running to try to catch the carrot. क्योंकि Hassel kept running, उसने दौड़ना जारी रखा किस चीज़ के लिए? गाजर को पकड़ने की कोशिश के लिए। ओके, Hassel kept running to try to catch the carrot. Hassel दौड़ता रहा बहुत तेज़ उस कैरेट को पकड़ने के लिए। कैरेट कहाँ था? The carrot was tied in front of Hassel's nose. Okay. Now, what was the result? Hassel won the race. Hassel ने रेस जीत लिया। ओके, एवरीबडी चीयर्ड, हर किसी ने तालियां बजाई या हर कोई बहुत खुश हुआ। वहाँ जो सब तमाशाई थे, जो रेस देखने आए थे, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। चीयर्ड मीन खुश होना। ओके, या तालियां बजाना। सो द टीचर गेव Hassel अ मेडल। टीचर ने Hassel को क्या दिया? रेस जीतने की खुशी में क्या दिया? क्योंकि Hassel फर्स्ट आया था, सो उसको क्या मिला? मेडल। ओके, द टीचर गेव Hassel अ मेडल। जिस तरह आप
लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हो, सो आपको क्या दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, ओके, स्कूल की तरफ से। दैट्स एग्जैक्टली द सेम कि ये जो डंकी है एसल, ये फर्स्ट आया रेस में, सो उसको भी मेडल मिला टीचर की तरफ से। शे टुक द कैरेट ऑफ द स्टिक। अब शे ने क्या किया कि वो जो गाजर था उसको डंडे से निकाला। टुक द कैरेट ऑफ द स्टिक, उसको डंडे से निकाला। एंड गेव इट टू एसल, और इसको एसल को दे दिया। ओके, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, लुक, एसल इज ईटिंग द कैरेट, ओके, आफ्टर विनिंग द रेस। नाउ मारिया रैन टू ग्रैंड डैड लियो। अब मारिया किन की तरफ दौड़ी, ग्रैंड डैड लियो की तरफ दौड़ी। रैन दौड़ी, एंड गेव हिम अ बिग हग, और उनको एक बहुत बड़ा हग दिया। हग मीन्स गले लगाना। सो मारिया बहुत खुशी के आलम में ग्रैंड डैड के गले लग गई। ओके, बहुत ज़्यादा खुश थी मारिया बिकॉज एसल वन द रेस। ग्रैंड डैड लियो विंक्ड, ग्रैंड डैड ने शरारत से आंख मारी। ओके, जब आप एक आंख मारते हैं दैट एक्शन इज कॉल्ड विंकिंग, आंख मारना। ओके, सो ग्रैंड डैड ने उसको आंख मारी, यानी ग्रैंड डैड का प्लान कामयाब हो गया। ओके, सो वी डू सच काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन आवर प्लान्स कम ट्रू, और जब हम कोई शरारत इस तरह की करते हैं। सो ग्रैंड डैड लियो विंक्ड एंड स्माइल्ड, और वो मुस्कुराए। ओके, इट वॉज द लास्ट पैराग्राफ। इसमें क्या था कि टीचर ने रेस के लिए विसल बजाई, सीटी बजाई। सही है, सारे बिग पोनीज जो थे वो बहुत तेज़ दौड़े थे, बट एसल वॉज मच क्विकर। और क्यों मच क्विकर था, क्योंकि उसके सामने, उसकी नोज़ के सामने कैरेट बंधा हुआ, तो उसको कैच करने के लिए वो बहुत तेज़ दौड़ रहा था। और इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि एसल वन द रेस। सब बहुत खुश थे। एसल को मेडल मिला टीचर की तरफ से रेस जीतने की खुशी में। और शे ने क्या किया कि वो गई और एसल की नोज़ के सामने जो कैरेट बंधा हुआ था उसको हटाया वहाँ से, और किसको दिया, एसल को दिया खाने के लिए। मारिया जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी, ग्रैंड डैड को गले लगाया और ग्रैंड डैड भी मुस्कुराए। सो दिस वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप यू एंजॉयड इट। नाउ कम एंड वी विल राइट the words meanings of these two paragraphs. Okay, all right, these are the words meanings. The first word is heard. Heard means suna. It's the second form of verb here. Okay, sunna. All right, heard means suna. Carrot, गाजर। ओके, कैरेट किस चीज़ को बोलते हैं, गाजर को। प्लान, मंसूबा, इस तरह से लिखेंगे, प्लान, मंसूबा। टाइड, टाइड मीन्स बंधा हुआ था। ओके, या बंधा हुआ, ये किस चीज़ का सेकंड फॉर्म है, टाई का, बांधना। ओके, टाई, टाइड, टाइड। सो बंधा हुआ था। ओके, या सिर्फ बंधा हुआ या बांधना। स्टिक, डंडा या चढ़ी। ओके, डंडा भी बोलते हैं इसको, और चढ़ी भी बोलते हैं। ब्लू, ओके, बजाना या पूंख मारना। इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ब्लो। ओके, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। ओके, सो बजाना या पूंख मारना। विसल, सीटी। ओके, विसल बोलते हैं सीटी को। चीयर्ड, खुश होना। ओके, चीयर्ड, खुश होना। इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चीयर। चीयर, चीयर्ड, चीयर्ड। ओके, एंड द लास्ट वर्ड इज विंक्ड। विंक्ड मीन आंख मारना। ओके, it's the second form of verb wink, winked, winked. Okay, first form is wink, second form is winked, and third form is winked. Okay, aankh marna. So these are the words meanings of the last two paragraphs of unit 10, page 44. Alright students, this is your homework for today. Note it down with yourself. It's reading of third and fourth paragraph of unit 10, page 44. मतलब अभी इस लेक्चर में हमने जो पढ़ा, जो दो पैराग्राफ्स पढ़े, उनकी रीडिंग करनी है आपने। पेज 44 पे है ये। और दूसरा का क्या काम करना है, यू हैव टू अंडरलाइन वर्ब्स इन दीज पैराग्राफ्स। कल वाले पैराग्राफ्स में मैंने आपको दिए थे नाउन अंडरलाइन करने के लिए। इन टू पैराग्राफ्स में आपने वर्ब्स अंडरलाइन करने हैं। ओके, इन टू पैराग्राफ्स में अपने वर्ब्स अंडरलाइन करने हैं, जो कि बहुत सारे हैं। आप जितने भी वर्ब्स आपको नज़र आए, इफ दे आर 10, 15, जितने भी हो, सब अंडरलाइन करने हैं। सो योर होमवर्क इज़ रीडिंग ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ ऑफ यूनिट 10, पेज 44,
And the next thing is you have to underline verbs in these paragraphs. Okay, kindly note it down with yourself. I'll repeat. Read third and fourth paragraph of unit 10 page 44. While reading, also underline verbs in these paragraphs.